Namaskar, I am Vandana Teji and I welcome you all. Let me begin with a brief intro about WICI or Women's Indian Chamber of Commerce and Industry, which is a national business chapter for women in India, envisioning global impact for women entrepreneurs, businesswomen, and professionals from all walks of life. It is supported by massive global networks of All Ladies League, ALL, Women Economic Forum, WEF, and She Economy with around 250,000 members and supporters worldwide, including 60,000 in India. Maharashtra Training and Development Council, which is our council, is a part of WICI, and our purpose is to inculcate a learning culture among women in Maharashtra. Our plan is to conduct motivational talks, training programs, and panel discussions, which will be open to all women. These Wiki Talks is a series which will put the spotlight on achievers like you who have taken the road less traveled and left a trail. We plan to talk on social issues which are related to women and try to spread awareness around topics which are discussed less. In continuation with the same, our speaker for today is Advocate Ujwala Kadrekar. Hello, ma'am. Hi. Hi. Hi, Rashi. Hi, everyone. Hi, Vandana. Hello, ma'am. Hello. So, Advocate Ujwala Kadrekar is a women and child rights and lawyer, a researcher, and a national trainer. Advocate Ujwala holds a master's in social work and an LLB from Mumbai University. She has been working in the social sector for around 25 years. During her stint of 12 years with the Maharashtra State Commission for Women, she has been actively involved in drafting of pertinent acts like the Protection of Women from Domestic Violence Act, PWDVA, the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, that is POSH, and Criminal Law Act 2013 CLAA, also known as the rape laws. She has also formulated guidelines for various stakeholders under the Protection of Children from Sexual Offences Act, that is POCSO, and is helping to build capacities of her stakeholders, including judicial officers, police officers, medical professionals on the above stated laws. Advocate Ujwala has worked on UNTF, UNDP, UN Women, British High Commission projects, and is currently working as a consultant with UNFPA and Oxfam India. Hello, and once again, welcome, ma'am. Thank you. Thank you, Vandana. Thank you so much for that introduction. And and for this opportunity too. Ma'am, it's an honor to have you with us, and a leader, and who is not just leader through her work but also her act. So I think it is an honor for WICI Maharashtra Training and Development Council to have you with us today, and I welcome you on behalf of everybody from our council. And ma'am, whenever I meet a person like you, the first question which I have in my head is if you can share a little about your journey, because it's amazing to know about your journey. Sure. About my journey, definitely I am like you all, and got opportunities, I should say that. And so I come from a very small town, that is one station beyond Kalyan. I am born and brought up in Shahad. I studied that. That's a place where my schooling was done. But after doing my 12th standard, I was very clear in my mind that I don't want to do basic science. I always wanted to study medicine. But okay, I got an opportunity. My parents were very supportive. So all the way from Shahad, actually, I came to Nirmala Niketan College. I did my BSc Home Science, and from there I continued with my post graduation
in Masters in Social Work. And this was the time actually, I was actually opened up, rather I got this opportunity to know about social issues. Uh, from there, I moved on. I worked with few NGOs. Yes, I got married, and after marriage, I took up a job in government sector. So I worked with Maharashtra State Commission for Women. I joined as a counselor and I resigned as officer on special duty. So that was my 12 years tenure in Maharashtra State Commission for Women. Being in Maharashtra State Commission, it was an eye opener for me because I was not a law graduate then, and of course, knowing about social issues, how the laws are formulated, because this was a time I got opportunity to work on certain drafts, some new legislations, or even suggesting amendments to existing laws. So this was a time basically I was working around these issues. Many laws were introduced, many amendments were introduced. We worked on almost 7 laws, and considering my ability, my credentials, I was promoted as officer on special duty in Maharashtra State Commission for Women. This was the time I was also studying law. So while in government job, I studied law because I began my career as a counselor, and I always believed, beyond a point I could not advise a woman, if the counseling fails, if the woman is actually not got what she has actually come to commission for, so how do we really go about it? So that was the time, and I always felt, no, I am not the right person to give her any legal advice with absolutely no legal background. And this actually prompted me to study law. So while I was in government service, I finished my law, and that was the time I decided I really need to move on. And yeah, it was a very hard decision, but very well supported by my Yeah, that's yeah. indeed, ma'am. You were working for the government and you were doing good and you decided to quit that. Yeah, I decided to quit only. I only felt, that for mainly, yes, for one reason was definitely I wasn't growing in that place. And I felt, that being a government servant, I mean, of course, yeah, being a government servant, you can do so much. But I always felt, we really need to contribute, if at all, contribute towards the welfare of the society. That was one point of time I decided to quit. I resigned from Maharashtra State Commission for Women, and I joined Lawyers Collective, which is an organization run by Miss Indira Jaising, if all of you know. Indira Jaising, yeah, Indira Jaising was Additional Solicitor General of India, but she's a director of Lawyers Collective. Noise That's collective. right. Yes. And while in commission, of course, so Domestic Violence Act was being enacted at that time, was being drafted. And from Maharashtra, in fact, we took the initiative to draft the state legislation, while a central legislation was also being drafted. So yes, contributed in the drafting of the act. But when I joined the Lawyers Collective, I really got an empty opportunity to just to monitor the law, just to monitor its functioning, the evaluation of the law, which actually gave me opportunity to at national level to understand the implementation of the act, how the judiciary is looking at the law, how the other stakeholders are really are looking at the law, and just to understand, the nitty gritty of its implementation, and the flaws, why it is not being implemented. So all this is was yes, as an UNTF project, we did monitoring of this law for almost 10 years. And Yes. yeah, it was a long time that we did. And so of course I got to work while in with Lawyers Collective. I was instrumental in, of course, not only just drafting of this law, of this Domestic Violence Act, but also mainly the monitoring and evaluation, and also looking into the implementation of the act. So and which actually opened up so many I should say so many arenas for us, and it gave us so many openings. Simultaneously, we also worked on sexual harassment of women at workplace. So this, of course, again, while in commission and while in Lawyers Collective.
But my major role was, of course, as a researcher, as a national trainer, and of course, when I see myself as an even from the advocacy point of view. So these were my areas of expertise. I was never a litigating lawyer per se, but these were my areas of expertise. And this drafting and this understanding the implementation of the act, how to interpret the act in the court, all this was very helpful. This was an exercise for me. And yes, very unfortunate incident for the country was Nirbhaya incident. And in fact, we were advocating to bring amendment in the rape laws for many years. But the triggering point was, of course, unfortunately, the Nirbhaya case. And when the Nirbhaya thing actually happened, so that was a time, and the POXO Act had just come in, and the Nirbhaya, because POXO Act came in November 2012, and Nirbhaya case happened in December 2012. So that was a time we really got an opportunity to present many research papers before the Justice Verma Committee, and that is how we have the new law in place, that is the Criminal Law Amendment Act. It suggested changes not only in the rape laws, but also introduced many new sections for acid attacks, for outraging modesty of women, that is molestation. All these cases were also part of it. So, so yes. So all this while, what we saw was, all this while the laws were more evidence centric. It was more evidence based. But we really worked towards bringing in change in the perspective that these laws has to be women centric. Has to be victim centric. Sorry. Indeed, and, indeed. Yeah. Then the evidence centric. I also, in fact, ma'am, this also, I'm sorry I'm cutting you, but I just wanted to make this point that, I have always felt, हमेशा लगता है मुझे कि जैसे कि women के लिए इतनी act बने हैं, and there has been a lot of work behind it, but we being women, आज के date में भी बहुत कम acts हैं जिसके बारे में, I think women are themselves aware. So that government is trying to safeguard their rights and everything. मैं उसी लाइन पे क्योंकि आप ये बता रहे थे, I thought I'll just add this. What do you, if you can, because I think it has been a big issue. Whenever I conduct POSH trainings also, my colleagues at work who have been in the system for a long time, more than 10-12 years now in the system, still they are not aware about POSH as an act. Okay. And a lot of myth is floating in the market. And I just wanted कि अगर आप कुछ highlight करो कि कौन से वो चुनिंदा acts हैं जो कि women के लिए जरूरी हैं, उनके बेहतरी के लिए जरूरी है, उनके राइट्स के सेफगार्ड के लिए जरूरी है, और एक वुमेन को अवेयर होना चाहिए. ठीक है. Hi Raina. I can see Raina has also joined us. Yes, Raina is also here. Raina. Good evening, ma'am. I'm so proud and I'm really feeling so happy that Vandana has got you today. It's such a wonderful moment, Vandana. I can't explain to you how I'm feeling. Unfortunately, I'm so sorry. I had to rush with a lot of medical emergencies at home, but I'm a little late, but really happy to see you here. Wonderful to hear you, ma'am. I'm just enjoying the moment. So on behalf of WICI Maharashtra, I think I, the President Raina Khatri Tandon, along with my awesome co-president Vandana Teji and Rashi Goel today, with esteemed members, all of them present on Facebook Live, and the viewers welcome you. We are really happy to have you here. Thank you so much. Yeah. Awesome. So yeah. Yes, indeed. So yeah. Can we move on, Vandana? Yes. Yes. Yeah. Please, ma'am. So basically, so as I said, in fact, some of the laws, you just asked me this question. What are the laws that women actually need to know? See, I personally is of the opinion, you not need to know the law, but you at least need to know your rights. I feel that is very important. And so even while for me, because I always feel, to some extent, yes, we are a bit privileged, because we may not have faced, rather not even have come across any abuse per se, in our home, in our own homes.
but in general, the kind of serials that have been portrayed, the way women are portrayed in our serials, you know, and are we? I at times really feel very shocked. Are we really dumb? The kind of serials that have been shown, and women have been constantly shown in a very submissive. I mean, they're always shown as very submissive and passive. This is my, I think, my major concern, you know. And so I feel, you know, what some important aspects that every woman should know, just not women, I feel even men should know, you know, because I think we are, first and foremost, we are human beings, you know, and then we are women, and then we are mother or daughter to somebody, you know. So I think as human being, when I see myself as human being, I have my own constitutional rights, you know. I think these rights we really need to, जिसको हम कहते हैं कि हमारे हमारे संविधानिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और ये हमारा संविधान जो कहता है स्त्री और पुरुष दोनों भी समान हैं। ये जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, ये जो हम बोलते हैं इक्वल, और आज हम 21वीं सदी में हैं, तो हम क्या महिलाएं, फिर वो घर पर हो, घर के बाहर हो, या हमारे घर में हमारी बच्चियां हैं, क्या हम सच में अपने आप को इक्वल समझते हैं क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इक्वालिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, और हम देखते हैं कि महिला जो है वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है जब वो, एक तो है कि बिकॉज शी इज वुमेन, दूसरी बात वो वल्नरेबल हो जाती है क्योंकि वो किसी कास्ट को बिलोंग करती है, तीसरी बार वो जब वल्नरेबल हो जाती है जब वो एक, आई मीन इफ शी इज पुअर, तो ये मुझे लगता है उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ाती है, ये कुछ हद तक उसकी वल्नरेबिलिटी। लेकिन मैं वही कहती हूँ कि जब हमारा संविधान कहता है कि यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लेकिन हम देखते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी की वजह से ही हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर वायलेंस ज्यादा होता है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक अधिकार है, इंपॉर्टेंट, these are basic fundamental rights of every citizen of our country, और one of the most important of course is right to equality, non discrimination, equal opportunity जैसे हम कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है right to live, जीने का अधिकार जो हम कहते हैं, और सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, तो हाँ, जीने का अधिकार नहीं, बट राइट टू लिव विद फ्रीडम एंड डिग्निटी, इतना सुंदर हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हम डिसीजन एज वुमेन, मतलब क्या आर वी रियली स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक डिसीजंस इन आवर लाइफ? क्या हमको डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? क्या महिलाएं अगर वो अपने लिए डिसीजंस ले भी लेती है तो उसके रिपोर्कशंस क्या हो सकते हैं? बिकॉज वो सब कुछ सोचती है जब वो कोई डिसीजन अपने लिए, अपने लाइफ में किसी के लिए लेना चाहती है। तो ये मुझे लगता है, ये अगर हम हर एक महिला, हर एक घर का, हमारे देश का हर एक सदस्य, ये 4-5 हमारे फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं सिर्फ घर की बात करती हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी मे बी द फॉर्चुनेट लॉट, यू नो, कि हमारे घर पे सभी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट देयर आर मेनी होम्स, यू नो, जहाँ पर मतलब somebody in the family is deciding for them। मोस्टली आज भी हम देखते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, the father, the brothers are taking decision for the daughter or the sister of the family। After marriage, it is the husband who is taking decision for the woman। तो ये हम देख रहे हैं ये cycle, and maybe if the woman has a son, then the son will decide for her, you know, what she has to do। तो ये जब हम सोचते हैं, ये सब हम देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को स्कूल में मुझे लगता है हमारे घर से, आई थिंक इफ द वुमेन इन द हाउस इज स्ट्रॉन्ग, द एंटायर फैमिली बिकम स्ट्रॉन्ग, और अगर फैमिली स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो सोसाइटी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बहुत विषय से मुझे लगता है, और ये मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ये जानकारी हमारे देश, मतलब हमारे महिलाओं को होनी बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही मैम। सॉरी, मैं एक पॉइंट आपसे उसी पॉइंट से निकाल रही हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो हमेशा हमारे जगह पे डिसीजन लेते आई है। एंड मतलब आई नो, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे ऐसा था। I was blessed to have parents who believed in me and they gave me the choice to make decisions. But in fact, मेरी ही फैमिली में मेरी सिस्टर्स, मेरी कजन सिस्टर्स को ये राइट नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम कैसे इस तरह के मिथ्स और बायसेस को थोड़ा तोड़े, कैसे कर सकते हैं? ये जैसे मैंने कहा है कि
घर के अंदर मुझे ऐसे बहुत लगता है कि आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड और मुझे बहुत लगता है, आई स्ट्रांगली फील कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत ओपन डायलॉग होना चाहिए घर के अंदर, यू नो, जहाँ पर मदर इज ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व as head of the family. She's equally involved, engaged in the decision making process. She's engaged, she's allowed to have a say in all the matters at home. अगर ये मुझे लगता है, ये अगर बच्चे देखते हैं तो they will definitely stand for themselves कि नहीं, we are allowed, we are also given space for ourselves कि हम इस तरह की बात कर सकते हैं. अगर हम देखते हैं कि जिस घर में, मतलब जनरली हम देखते हैं कि घर के अंदर हम, एक तो मैं कहती हूँ कि यस, डायलॉग होना बहुत जरूरी है. दूसरा मुझे ये लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप से अपनी एक पहचान करके, एक घर के अंदर, घर के बाहर एक अपनी खुद की एक पहचान होनी चाहिए. आई ऑलवेज लाइक टू बी नोन एज उज्ज्वला, फिर वो मेरे घर के अंदर हो या मेरे घर के बाहर हो. आई दैट इज माई आइडेंटिटी. न कि मैं किसी की बीवी हूँ या किसी की बेटी हूँ या ना, वो भी मेरी आइडेंटिटी है. नॉट दैट इट्स नॉट माई आइडेंटिटी, बट आई फील, यू नो, मेरी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है और वो पर्सनैलिटी मुझे सामने लाना है. मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि लड़का और लड़की, मतलब ये कहीं पे तो भी घर से हमारे चालू होना चाहिए कि क्या हम सेक्स जेंडर जैसा चीज समझते हैं, पहचानते हैं, हमको पता नहीं है. क्या सेक्स और जेंडर सेम होता है, अलग होता है, ये हम देखते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट. हाउ इज इट, यू नो, कि क्या एक 5 साल की बच्ची है या 2 महीने की बच्ची है, क्या उसको अपने भाई जितनी भूख नहीं लगती है? क्या उसको ये कहा जाता है कि तू वो ग्लास, पानी का ग्लास लेके अपने भाई को दे दे? व्हाई इट इज नॉट द अदर वे राउंड? व्हाई द भाई इज नॉट आस्क्ड टू डू दैट? हम ये कहते हैं कि जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो लड़का और लड़की को समानता, मुझे वही लगता है कि हाउ आर यू इवन गोइंग टू रिस्पेक्ट द वुमेन इन योर फैमिली? यू नो, मैं समझती हूँ कि ट्रीट योर चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज को. हम देखते हैं कि बहुत सी फैमिलीज में आज भी लड़कियों को जब भी पीरियड्स आते हैं तो उसको पता भी नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है. You know, the parents really need to engage with their children, talk about secondary sexual characteristics with their children, जो बहुत important है. और बॉयज और गर्ल्स के लिए इक्वली मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है. अब इक्वली, you know, then only I feel the boys in your family will respect women's body, will respect every woman in the family. और ये जो है इन द फैमिली एंड ऑल्सो ऑन द रोड, कल वो प्रोफेशनल्स बोल के बाहर जाने वाले हैं, तो जब तक आप ये इस तरह का इंट्रोडक्शन अपने बच्चों के साथ नहीं करते हो, एंड बहुत हेल्दी लिविंग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो कल्चर है, आप कल्चर भी देखोगे, जो हमारे रिचुअल्स हैं, आप ये देखोगे तो एवरी रिचुअल, एवरी कल्चर इन आवर कंट्री इज सबऑर्डिनेटिंग वुमेन टू एन एक्सटेंट. हम अभी आप देखोगे वी आर इन 21st सेंचुरी. कौन से, जैसे आपने मुझे सवाल पूछा था कि कौन से लॉज महिलाओं को पता होने चाहिए, मुझे लगता है महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कौन से कानून है हमारे देश में. मुझे लगता है हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो सबसे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कानून हमारे देश में महिलाओं के लिए बना था वो था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. और आज हम 21st सेंचुरी में है, मतलब डाउरी को प्रोहिबिट 1961 में किया है, लेकिन आज हम लोग 2021 में हैं. और आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि ये डाउरी का प्रेवलेंस आज की तारीख में भी हम लोग देखते हैं. मुझे बहुत अचंभा होता है व्हेन आई वाज इन स्टेट वुमेन्स कमीशन. तभी मैं एक एडवर्टाइज, हम लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम, रेदर इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने काम किया था कि क्लिनिक्स के बाहर लिखा हुआ था, आज 5,000 भरो, कल 5 लाख की बचत होगी. You know, so there was so much of underlying message in that कि see, if it is a female fetus, आप abort कर लो तो that will cost you 5,000 rupees, so that you don't have to incur another 5 lakhs rupees for a dowry. तो मतलब आप देखिए कि हमको हमारी अगर लड़की, इट्स वेरी सैड. आज आप चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिए हमारे देश का, हर 1000 लड़कों के पीछे आज हमारे पास 843 फीमेल्स हैं. इतने आज हमारा सेक्स रेशियो, मतलब क्या हम प्रोग्रेसिव है, हमारे विचारों से हम प्रोग्रेस, हमने टेक्नोलॉजी में हमने बहुत तरक्की कर ली. हमने देखा है कि यस, आज हम
एक डेवलपिंग कंट्री से हम शायद आगे चलकर हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। आज हमारी तुलना यूएस जैसे राज्यों से देश से हो रही है। जब हम ये सब देखते हैं तो क्या हमारी सोच, और मुझे ऐसा लगता है चैरिटी नीड्स टू बिगिन फ्रॉम होम। जब मैं और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर से अपने खुद के विचार भी एक होना बहुत जरूरी है। हम किस तरह से विचार करते हैं, अगर मैं बाहर जाके प्रीच कर रही हूँ तो, और अगर मैं घर में ही मेरे घर के अंदर ही अगर मैं लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करती हूँ तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि, तो जैसे मैंने कहा है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, अभी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या कहता है कि डाउरी लेना और देना दोनों भी गुनाह है। गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी इज एन ऑफेंस, ये डाउरी लॉ बहुत अच्छे से कहता है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो लेने वाला है उसको तो हम अरेस्ट करा देते हैं, और वो लेने वाले को भी हम कब अरेस्ट कराते हैं? देते समय तो पेरेंट्स बहुत खुशी खुशी देते हैं। आज तक हमारे देश में कोई भी स्टडी नहीं है जो ये कहता है कि मेरी बच्ची को मैंने इतना डाउरी दिया तो मेरी बच्ची इतनी खुश है, तो इतना दिया तो इतनी खुश है। इसका कहीं प्रपोर्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा देते हो उतना हैरेसमेंट ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। तो ये हमने देखा है। एंड हाउ कैन यू ऑब्जेक्टिफाई योर चाइल्ड, ये जो है ना, मैं ऐसे कहती हूँ, बिकॉज आप देखोगे हमारे जो स्कीम्स निकलते हैं, पॉलिसीज निकलते हैं, ये क्या कहते हैं कि लड़के के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कीजिए और लड़की की शादी के लिए इन्वेस्ट कीजिए। यू नो, ये अगर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा तो ये हम देखते हैं कि कैप्शंस होते हैं कि लड़की की शादी के लिए इन्वेस्ट कीजिए, पेरेंट्स को कहा जाए, मतलब LIC में आप लड़की की शादी के लिए इन्वेस्ट कीजिए और लड़के की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मैं कहती हूँ कि दोनों की पढ़ाई के लिए क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए। आई फील एजुकेशन जैसा इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है आज। इनफैक्ट एक जो हमेशा की बात आती है गिल्ट की, ठीक है, आप अगर देखोगे कि वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सी स्वीट में हमारे पास कम से कम विमेन होते जा रहे हैं। द रीजन बीइंग ये नहीं है कि विमेन का एजुकेशन परसेंटेज कम रहा है, कम से कम विमेन का एजुकेशन परसेंटेज बढ़ता है, एंट्री लेवल विमेन भी है सोसाइटी में, बट बिकॉज दे आफ्टर शादी फिर बच्चा, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन के ऊपर आती है, दे डिसकंटिन्यू देयर करियर्स। एंड जिसके कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सी स्वीट में आज के डेट में भी रिजर्वेशन होता है, और फिर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो फिर सबको गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब जब भी 73rd अमेंडमेंट आया था और महिलाओं की रिजर्वेशन की बात हुई थी कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए वर्क फोर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो 33% रिजर्वेशन आ गया है। लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे तो फिर जैसे पार्लियामेंट में आप देखिए कि कितने वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं, कितने जजेस आज हमारे, कितने वुमेन जजेस हैं, तो आप देखोगे तो मिनिस्क्यूल है। You can count them on your fingers, which is again a very sorry state of affairs. मुझे ऐसा लगता है कि yes, I strongly feel कि because आज की तारीख में, और मैं ये नहीं कहूंगी कि एजुकेशन की वजह से ही आप में बदलाव आ सकता है या आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ये भी जरूरी नहीं है। आप कितने अपने आप को सकम करते हो, आप कितना सरेंडर करते हो अपने आप को, आप कितना अपने आप को कमजोर समझते हो। जब आप अपने आप को कमजोर समझते हो तो यू आर सीकिंग समबडीज हेल्प, और ये मुझे लगता है कि यू रियली नीड टू स्टैंड फॉर, आपकी जो बाउंड्री है उसको एक्सपांड करने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं को जो है कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सी महिलाएं जो है शायद कुछ हद तक मैरिटल रेप के शिकार होते होंगे, लेकिन किसी महिला को ये नहीं पता है कि अगर वो उसका पति है तो वो लाइक योर बॉडी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ योर हस्बैंड, यू नो, और वो भले ही आप उसकी वाइफ हो, लेकिन वो उसकी आपकी कंसेंट के बिना वो आपको छू नहीं सकता है। तो ये मुझे लगता है ये मैसेज भी, बिकॉज हमारी जो महिला है फिजिकल अब्यूज होता है तो यस कुछ हद तक वो बाहर आती है, उसके बारे में बात करते हैं। हम वही देखते हैं कि व्हेन शी इज थ्रेटन्ड विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज द टाइम शी इज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस एंड शी इज सीकिंग सम हेल्प। पुलिस स्टेशन, कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, शायद वो अपने पेरेंट्स को बताने में भी काफी टाइम निकाल देती है,
एंड कभी कभी ऐसा लगता अपने है आप को बोलने में बहुत टाइम निकाल देती अपने आप को बोलने में भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है वो, यू नो, कि अरे पति मारता तो नहीं है, गाली गलौची दे रहा है ना, तो वेदर दिस इज वायलेंस, ही इज सेक्सुअली वायलेटिंग मी, वेदर दिस इज वायलेंस, ये रिकॉग्निशन भी आज हमारे महिलाओं में नहीं है। तो ये रिकॉग्निशन भी मुझे लगता है कि होना बहुत जरूरी है। एंड कुछ लॉज में बदलाव आया है। मैरिटल रेप हमारे देश में आज की तारीख में भी क्या कहेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन महिलाओं को आईपीसी में अभी अमेंडमेंट आया हुआ है और महिलाएं भी अपने पति के खिलाफ रेप के चार्जेस कर सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हाँ, तो ये हमको अभी हम देखेंगे कि जब मैं मतलब सेक्सुअल वायलेंस इस विषय पर भी जब मैं काम कर रही थी, तभी मेरा एक बहुत ध्यान में आता था कि काफी हद तक हम देखते थे कि जो बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो है, उसके साथ फॉन्डलिंग के केसेस काफी मेरे ध्यान में आए थे। आई डेल्ट विद सेक्सुअल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस, और तभी हमने देखा था कि फॉन्डलिंग जैसे केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे थे। और वो फॉन्डलिंग में नॉट ओनली टचिंग योर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, बट इट ऑल्सो मेंट कि फिंगरिंग जैसे मैंने काफी केसेस आई हैव कम अक्रॉस फिंगरिंग के केसेस, ऑब्जेक्ट इंसर्शन के केसेस देखे थे। लेकिन हमारा कानून क्या कहता था कि ओनली व्हेन देयर इज फोर्सफुल पिनोवजाइनल पेनिट्रेशन तो ही वो रेप माना जाएगा, तो ही वो सेक्सुअल वायलेंस माना जाएगा। अभी किसी के साथ फिंगरिंग होता है या किसी के साथ ऑब्जेक्ट इंसर्शन होता है तो ये रेप नहीं है, ये मोलेस्टेशन है। तो आप सोचिए कि कहाँ पर आपको 10 साल की सजा हो सकती है और कहाँ पर आपको 1 साल की सजा हो सकती है। तो ये भी वी वांटेड टू ब्रिज दिस गैप। वी आल्सो फेल्ट यू नो कि चिल्ड्रन जो है, बच्चों को है, किस तरह से बच्चों को स्पेशली व्हेन दे आर सेक्सुअली वायलेटेड, तो एक क्रिमिनल केस हो जाती है। जब क्रिमिनल केस होती है तो उनको पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, द चिल्ड्रन वेर इंटरोगेटेड लाइक एन एडल्ट। वो जिस तरह से सवाल जवाब पूछे जाते थे, उनको ट्रायल के वक्त उनको कटघरे में खड़ा रखते थे। तो ये सब जो था, ये सब प्रोसीजर्स को हम लोगों ने चैलेंज किया और एक अच्छा गाइडलाइंस आया, और ये गाइडलाइंस के तहत पर साक्षी गाइडलाइंस जिसको हम कहते हैं, और तब जाके हमने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये एक स्पेशल लॉ है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए है, और ये बच्चों के लिए है। और आपने देखा होगा कि सेक्सुअल असॉल्ट का जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है ये भी पूरी तरह से लेट एवरीबडी नो अबाउट इट, यू नो। ये जो कुछ लॉज है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्सुअल ऑफेंस या सेक्सुअल असॉल्ट या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का कानून आज एक ही पार पे है। और ये कानून ये कहता है कि कोई भी पेनिट्रेशन बाय पेनिस, बाय ऑब्जेक्ट, बाय एनी बॉडी पार्ट, कोई भी इस तरह का पेनिट्रेशन होता है इन ईदर इनटू द वजाइना, इनटू द एनल रीजन और इनटू द माउथ और यूरेथ्रा, ये 4 ओरिफिसेस में जब भी पेनिट्रेशन होता है तो इट इज रेप और इट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और इसकी सजा जो है आज वो 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो गई है। तो ये सजा भी अभी बढ़ गई है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि नोबडी कैन टच योर बॉडी विदाउट योर कंसेंट। आज आप लोगों ने देखा होगा कि नागपुर बेंच का जो जजमेंट आया हुआ था, स्किन टू स्किन टच का जो आया हुआ था, जी जुडिशरी कैसे इंटरप्रेट कर रही है उसको, ये भी हमको, तो क्या ये हमारा सिस्टम है जो हमको सोचने नहीं देता है? क्या हम उसका टेक्निकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे? एक 12 साल की बच्ची को हम, मतलब ये जो आज आप लोगों ने प्रिया रमनी का केस देखा होगा, मतलब हम कहते हैं कि मैं तो सबसे पहला सवाल तो ये सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा स्थान है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित है? हमारे देश में कौन सी जगह ऐसी है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित है? Which is a place where woman is most safe? इस होम कहीं नहीं है। क्या घर उसका सबसे उसके लिए सेफ है? क्या रास्ता उसके लिए सेफ है? कहीं नहीं। क्या वर्क प्लेस उसके लिए सेफ है? मतलब आप सोचिए 21st सेंचुरी में हमने डोमेस्टिक वायलेंस का कानून लाया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जहां पर हमने रिकॉग्नाइज किया 4 तरह के वायलेंस, और वो वायलेंस है फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस एंड सेक्सुअल वायलेंस। और हमने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि इट इज जस्ट नॉट द मैरिड वुमन हु इज फेसिंग वायलेंस एट होम, it is women in any relation, in any domestic relationship, if she is facing violence, that is domestic violence. तो इसलिए हमने देखा था आज तक हमारे पास कानून नहीं थे, सिर्फ जो मैरिड वुमेन है उनके लिए हमारे पास कानून थे, लेकिन हमारे पास
किसी कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटी है, इनके लिए हमारे पास कानून नहीं था। अगर उनके साथ घर के अंदर वायलेंस हो रहा है, घर के अंदर फिजिकल वायलेंस हो रहा है, उनके साथ इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है, बेटी को पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये सब जो है फीस नहीं भरे जा रहे हैं बच्चों के, ये सब इकोनॉमिक वायलेंस में आता है। और हम देखते हैं इसलिए एक लॉ की जरूरत थी कि घर के अंदर रहने वाली महिला वो किसी भी रिलेशनशिप में रहती होगी, इन सब के लिए लॉ लाना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस का कानून आया, वायलेंस का कानून आया है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट लाया जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर काम करता है। और सभी मतलब बच्चों के साथ, और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मतलब आज तक का जो हमारा कानून था वो पूरी तरह से लड़कियों के लिए, मतलब आईपीसी में लड़की के साथ अगर सेक्सुअल वायलेंस होता है तो उसके लिए हमारे पास आईपीसी में प्रोविजंस थे, लेकिन अगर लड़कों के साथ अगर होता है तो हमारे पास 377 के अलावा कोई भी ये नहीं था। तो लड़के भी इक्वली, मतलब आज के ही पेपर में मैंने पढ़ा एक 12 साल के लड़के को किस तरह से अब्यूज किया गया, एंड मतलब वो बच्चे के एनल रीजन में द 12-year-old चाइल्ड वाज बॉय वाज मेंटली चैलेंज, और उसको कहीं लेकर जाकर उसके पूरे एनल रीजन में थॉर्न्स मतलब जो कांटे होते हैं वो ऐसे श्रब्स उसके ब्रांचेस उसके एनल रीजन में डाला गया। एंड तो ये आज के पेपर में ही रिपोर्ट हुआ है। तो इट इज नॉट दैट द बॉयज आर नॉट सेक्सुअली वायलेटेड, द बॉयज आर आल्सो सेक्सुअली वायलेटेड। और इसलिए पॉक्सो एक्ट आया कि जो दोनों भी लड़का और लड़की के लिए, दोनों के लिए ये कानून बना है। तो हमने देखा कि कैसे हमने एक जेंडर न्यूट्रल कानून चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए लाया है। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो रिकॉग्नाइज किया कि वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है कि वेयर वी आर स्पेंडिंग द मोस्ट क्वालिटी टाइम ऑफ द डे। एग्जैक्टली, we are most constructive at that point of time, you know, from 10 to 5 जो भी हमारा वर्किंग आवर्स है वो वक्त हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होते हैं। जब ये कंस्ट्रक्शन, जब इस तरह का माहौल में अगर मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, इट इज टेकिंग अवे माय राइट टू वर्क विथ इन ह्यूमन एंड जस्ट कंडीशंस। तो ये जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो राइट को ही वर्क प्लेस पे चैलेंज किया जाता है। इट इज नॉट अलाउिंग मी टू वर्क विथ डिग्निटी जो हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो टेकिंग अ टोल ऑन माय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। तो ये सब जो मेरे फंडामेंटल राइट्स है ये सबको कैसे वायलेट करता है। और इसलिए मैं यही कहती हूँ कि बिफोर इवन यू टॉक अबाउट एनी लॉ, आई थिंक यू शुड नो योर फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स आपको कोई कानून की भी जरूरत नहीं होगी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल। सो ऑन द सेम लाइंस आपने बात करी कि जेंडर एग्नोस्टिक हमने पॉक्सो बनाया। जेंडर एग्नोस्टिक हम पॉश के बारे में बात बहुत होती है लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। देयर आर पिटिशंस विच वी हैव बीन डिस्कसिंग। जब से पॉश आया है तब से ही भी ये भी बात भी हुई थी कि वर्क प्लेस हरासमेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू विमेन, इसमें अदर जेंडर्स का भी है उतना ही नंबर नहीं, मे बी इट इज नॉट सेम, but you know there has to be a act to safeguard everybody's dignity at workplace. Yes. So ma'am उसके बारे में आप बताइए कि क्या discussions चल रहा है at a legal front, you know, why the government has not yet included men in it? नहीं, see first and foremost ये लॉ मैंने वही कहा है कि 21st सेंचुरी में हमको जेंडर स्पेसिफिक लॉज आ रहे हैं। मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए कानून 21वीं सदी में बन रहे हैं। क्यों? जबकि जेंडर इक्वालिटी तो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 में प्रॉमिस किया है। फिर आज की तारीख में हमारे देश में जेंडर स्पेसिफिक लॉज क्यों आते हैं? ये सबसे पहला सवाल तो ये है। अगर आप डेटा देखोगे, आपने कहा कि मैं कभी ये डिनाई नहीं करूंगी कि पुरुषों के साथ वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट नहीं होता है, लेकिन क्या पुरुषों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है क्या? जिस तरह की केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट होते हैं, मतलब मैं अभी केस एक हैंडल कर रही थी। बहुत आम बात है कि जहां पर आप देखिए कि आजकल आप देखोगे कि आप वर्क प्लेस अभी हम लोग 24/7 वी आर कनेक्टेड विद आवर कलीग्स, you know, on WhatsApp, on emails. It may be for official reasons, right? It may be for, अभी तो फिलहाल तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो all the time you are connected with your colleagues.
ओके हमारा कलीग्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जब उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको कोई अननेसेसरी मैसेजेस आते हैं, आपको पता है कि किस तरह के मैसेजेस बॉयज भेजते हैं जो शायद वो अपने मेल कलीग्स के लिए होगा, लेकिन उसको पढ़ने वाले फीमेल कलीग्स भी है ना, बिकॉज दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप, यू नो, बट हम वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि आज कभी आप लोगों ने गौर किया होगा देखकर, तो हमारे देश में जो गालियां हैं, यू नो, द वॉइसेस आर ऑल ऑन वुमेन। ये कभी आप लोगों ने देखा कितने आसानी से हम ये सब गालियां देते हैं, हम ये समझते ही नहीं है कि मेरे घर में भी माँ है, बहन है, मेरी बीवी है, यू नो, और ये मतलब हम इसको कैसे सुनते हैं या तो ये और जिस तरह के अगर हम देखते हैं कि आप देखो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है, महिलाओं के खिलाफ का जो हैरेसमेंट है, द काइंड ऑफ केसेस दैट आर गेटिंग रिपोर्टेड, यू नो, द काइंड ऑफ केसेस दैट आर गेटिंग रिपोर्टेड, मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर वुमेन को एक तो है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो दो कारण से होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हैरेसमेंट जो होता है, इट इज ऑलवेज, या वायलेंस होता है, इट इज ऑलवेज बिटवीन पावरफुल एंड पावरलेस, you know, yeah, so it is always the powerful person who is harassing the powerless. फिर और वो सिर्फ आपकी पोजीशन को मायने नहीं करता है, the sex that you carry, yeah, I think the sex is also a tool, एक वेपन है जो I can get away by doing anything, by saying anything. ये जो है ये एक जो मेंटालिटी है हम देखते हैं कितने हम लोगों ने जैसे कहा है कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिग्निटी है एट वर्क प्लेस, ये मेरा वायलेट हो रहा है एट वर्क प्लेस पे। किस तरह से कमेंट्स मेरे ऊपर पास किए जाते हैं, किस तरह से मतलब महिलाओं की डिग्निटी की जब हम बात करते हैं। अभी आपने देखा प्रिया रमनी का केस, मी टू कैंपेन वाजन मतलब ये जो मी टू कैंपेन था, ये ऐसा प्लेटफॉर्म आया था कि इट इज नॉट इजी फॉर वुमेन टू इवन कंप्लेन अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। आप सोचते हैं क्या आसान है महिलाओं के लिए? आसान नहीं है। तो जब इतने ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब हम बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव हमको स्ट्रेंथ मिलता है उसकी वजह से। इंडीड। आप अभी आप देखिए कि मी टू कैंपेन में क्यों नहीं पुरुष ने भी कहा कि हमारे साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे। ऐसे तो नहीं था ना कि मी टू कैंपेन वाज ओनली फॉर वुमेन। व्हाई डिड नॉट? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द डेटा इज ओनली अबाउट वुमेन एंड द काइंड ऑफ हैरेसमेंट दैट दे फेस। आज मैं मेरे काम पर जब जाती हूँ, अनलेस द वर्क प्लेस इज कंडीसिव फॉर मी, आई विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर। यस, और अगर मैं हैरेसमेंट फेस करती हूँ, आई मे नॉट इवन वांट टू गो टू माय वर्क प्लेस एंड वर्क ओवर देयर। ये जो फीलिंग आती है विच अफेक्ट्स माय परफॉर्मेंस, कल मुझे उसकी वजह से मेमो दिया जाता है। कल आप देखोगे, अभी आप प्रैक्टिस देखिए कंपनीज में कैसे हो रही है। इफ द वुमेन इज फाइलिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट, अगर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट करती है, तो उसके लिए इतना हॉस्टिलिटी क्रिएट किया जाता है, इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, या तो वो खुद रिजाइन होके चली जाती है या उसको टर्मिनेट किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। या an employee who must have worked with you for 10 years and 15 years and she has been applauded for her performance, suddenly वो non performer हो जाती है just because there is a sexual harassment complaint। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये mindset, ये जो सोच है, ये पर्सपेक्टिव है, ये बदलना भी बहुत जरूरी है। और इंटरनल कमेटी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका तो बहुत बड़ा हाथ होगा। इन लोग they have to be strengthened, उनको बहुत पावरफुल करने की जरूरत है, so that you know you have to encourage women to come forward। आज आसान नहीं है महिलाओं को, because कमिटी पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के होते हैं और एक आउटसाइडर होता है। आउटसाइडर कितना स्ट्रांग होगा उसके ऊपर आपका डिसीजन डिपेंड करेगा, डिसीजन डिपेंड करता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमने वही देखा हुआ है कि किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में हम देखते हैं कि कैसे महिलाओं को कॉर्नर किया जाता है, पूरा कोई विटनेस आगे नहीं आता है। ऑफ कोर्स सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑलवेज हैपेंस इन क्लोज्ड डोर्स, उसके लिए कोई विटनेसेस नहीं होता है। लेकिन या तो मतलब कल जब मैं एक केस कर रही थी, तो 2 लड़कियों का केस था, और ये दोनों लड़कियों का यही कहना था कि मैडम हम लोग सिर्फ 4 लड़कियां हैं 70 एम्प्लॉइज में, वी आर ओनली 4 गर्ल्स
एंड द एटमॉस्फेयर इज सो होस्टाइल, हम जगह पर से उठ नहीं सकते। हमको डर लगता है कि जब हम पास होंगे उन लड़कों को तो क्या क्या सुनने आएगा, क्या क्या कमेंट्स हमारे पास हमको सुनने आएंगे। वी आर नॉट एबल टू, आज मैडम वर्क फ्रॉम होम है, उसके बावजूद भी हम काम पर आ रहे हैं, लेकिन हम काम ही नहीं कर पाते हैं और हम रात को 10-10 फाइल उठा के घर पर लेके जाते हैं और काम करते हैं। द काइंड ऑफ कमेंट्स, मैं वही कह रही हूँ कि आप अब व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आपका नंबर ऑटोमेटिक फ्लैश होता है सब जगह पे। इनफैक्ट या तो when are you crossing the boundary, the male employee, I mean I think as employees, male female, we really need to understand, you know, कि why we should not cross the boundary। शायद मुझे ठीक है, मेरे और तुम्हारे संबंध अच्छा होंगे, आई एम फाइन विथ यू कमेंटिंग ऑन मी, बट यू मे नॉट बी फाइन ऑन गेटिंग सच कमेंट्स फ्रॉम एनीबडी। तो ये जो है, ये जो क्रॉसिंग द बाउंड्री है, ये जो मेरी कंफर्ट जोन है, ये इम्पैक्ट है। लॉ बहुत बहुत क्लियरली कहता है कि इट इज व्यूड फ्रॉम द रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द परपिट्रेटर। लॉ इतना क्लियर है, वो कहता है कि इनफैक्ट क्योंकि मैं एक्सटर्नल मेंबर भी हूँ मैम, तो मैं हमेशा यही देखती हूँ कि पीपल आर इन अ हेस्ट ऑफ टेकिंग जजमेंट। जो भी आपके पॉश के जो एक मेंबर्स होते हैं, इंटरनल कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि दे आर इन द हेस्ट ऑफ टेकिंग डिसीजन, सिर्फ एक साइड का। और मेरे ख्याल से एज एन एक्सटर्नल मेंबर जो ड्यूटी होती है कि भाई ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करिए, आप केस पे ध्यान कीजिए, एंड उनको ये जो डिसोसिएट करना होता है, ये बंदा जिसके बारे में केस आई है, मे बी उस कमिटी में से किसी का दोस्त होगा। एग्जैक्टली ये सभी it's a very very difficult scenario, and investigative mindset and mentality is not something with which we are born with judgmental, ये देखो वो देखो। ये जो प्रॉब्लम है, और आज के डेट में इस चीज को अगर कोई भी वर्क प्लेस पे सिर्फ एक कमिटी बनाने देने से बात नहीं बनेगी। जब तक कि इनकी क्वार्टरली मीटिंग्स नहीं होंगी, जब तक कि कंप्लायंस का ध्यान नहीं दिया जाएगा, ट्रेनिंग की ध्यान नहीं दी जाएगी। मुझे भी वही लगता है। देखो, लॉ का नाम ही क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। यू नो, तो आपका ज्यादा फोकस, कंपनी का ज्यादा फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बिल्डिंग अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है इवन वुमेन आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हैरेसमेंट, उससे वो लगता है कि अरे ये तो सभी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, व्हाई आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल अबाउट इट। तो उसको समझ भी नहीं आता कि क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आज अगर आप देखोगे तो वर्चुअल, आज हम लोग वर्चुअली वी आर कनेक्टेड विद आवर कलीग्स, लेकिन टुडे वुमेन आर कंप्लेनिंग that men are not appropriately dressed during virtual meetings. They are not sitting in a right posture, you know, while in a meeting. Not proper. एक तो है कि definitely inappropriately dressed होते हैं। हम देखते हैं कि because we are working from home and women, आपको सभी को पता है कि women जो है आज वो घर पर है, तो ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ ऑफिस का काम, वो उसके बच्चे हैं जिसको, because even the school is from home, even the husband is working from home, she has to even maybe look after her ailing parents in laws। ये जो है, ये मल्टीटास्किंग में आज वो खुद भी घर से काम कर रही है। तो महिला जब घर से काम करती है तो वो कितना प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्या उसको एक अलग से कमरा मिलता है, क्या उसको एक लैपटॉप मिलता है काम करने के लिए, क्या वो 8 to 5 एक जगह पे बैठ सकती है, क्योंकि इन बिटवीन उसको शायद नाश्ता बनाना होगा, खाना बनाना होगा, या बच्चों के स्कूल को अटेंड करना होगा, ये जो भी है। तो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक यू नो, मैंने जैसे शुरू में ही कहा है कि बचपन से अगर हम बच्चों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट, दोनों मेल फीमेल को अगर जब तक हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाएंगे ना, ये बहुत यू नो कि we cannot take women for granted. Cannot agree more on this. In fact, yes. And बच्चों का कैसा है ना, they are very very perceptive. अगर वो देखेंगे कि आप अपने घर की जो मदर है या जो वाइफ है, आप उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट कर रहे हो, they will learn the same thing. Absolutely. And बहुत ही सही बात बोली आपने कि it has to be inculcated right from the childhood. और जब तक हम इसके बारे में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर से, I always strongly feel कि charity begins from home. आपको घर से, because for children teachers are their best role models, हम कहते हैं, because children believe in teachers more than their own parents. तो जब हम कहते हैं तो इसलिए हम चाहते हैं कि टीचर्स और बच्चों में भी उस तरह का ओपन डायलॉग होना चाहिए। आज हम देखिए,
हम 20 वही मैं बोल रही थी, आप बच्चों की बात कर रहे थे, मैं आपसे क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप साइबर हरासमेंट एंड बुलिंग के ऊपर भी आपका बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं जानना चाहती थी क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं। आज के डेट में यंग जनरेशन है, दे वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया, मगर ये ट्रोलिंग, ये कंटिन्यूअस कमेंट्स एंड उसके कारण आप देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है उनके नंबर ऑफ सुसाइड्स इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हर दिन आपको, हर हफ्ते एटलीस्ट एक ऐसा सुसाइड का केस जरूर आएगा जहाँ पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ये हो गया और उसके कारण उसने सुसाइड कर ली। मैम आपकी हेल्प चाहिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो ट्रोलिंग है, ये साइबर बुलिंग अगर आपके साथ किसी के साथ हो रहा है तो हाउ कैन दैट पर्सन टेक एक्शन। एक तो है कि मैं ये कहूंगी कि अगर ट्रोलिंग बुलिंग जैसा हो रहा है, प्लीज इट्स माय अर्ज टू ऑल ऑफ यू कि चुपचाप नहीं बैठना है, एंड जस्ट बीइंग इग्नोरेंट अबाउट इट, जस्ट क्लोजिंग योर अकाउंट डज नॉट हेल्प। पहली बात तो इसका, आई एम डेफिनेटली नॉट एन एक्सपर्ट इन साइबर क्राइम्स, बट लेट मी टेल यू, रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी इसका कॉग्निजेंस, और आज हमारे देश में महाराष्ट्र में मैं कहूँगी, स्पेशली इन महाराष्ट्र, इन मुंबई, हमारा साइबर सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप ही आज के या कल के पेपर में ही मैंने पढ़ा था कि किस तरह से आजकल बिकॉज साइबर क्राइम में अभी बहुत बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन इट इज माई अपील टू ऑल द जनरेशन और द कि ऑडियंस, मुझे ये कहना है कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से हैंडल, आप खुद कैसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप क्या शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, बिकॉज आज का जो ट्रेंड है इसमें हम लोग पर्सनल और प्रोफेशनल में हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, एंड और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप किस तरह के आपके फोटोज पोस्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सनल लाइफ को पोस्ट कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आज सोशल मीडिया पे जा रहा है, कोई आपको ट्रोल कर रहा है उसके लिए नो बिजनेस। मतलब आज आप देखोगे कि इवन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में भी बहुत सी फीमेल एम्प्लॉयज ने मेरे पास ये भी कंप्लेंट किया था कि मैडम मेरे कलीग्स जो है, बिकॉज अभी हम लोग मेल पे कनेक्टेड है, बिकॉज हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो अल्टीमेटली दे हैव एक्सेस टू माय फेसबुक अकाउंट ऑल्सो, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी, तो मुझे कमेंट्स फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, और जो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ उसके बाद भी ये ट्रोलिंग चालू रहती है, तो मैं वही कह रही हूँ कि यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन कि आप कितना पर्सनल होंगे, आपको कब प्रोफेशनल होना है, और जब तक आप ये नहीं, व्हेन यू आर नॉट एबल टू, एंड उसके बावजूद भी आपके साथ ट्रोलिंग हो रहा है, स्टॉकिंग हो रहा है। आई डिड वन केस ऑफ स्टॉकिंग ऑन टेलीफोनिक स्टॉकिंग पे मैंने एक केस किया, इमीडिएटली वी रिपोर्टेड टू द साइबर क्राइम, इमीडिएटली वी रिपोर्टेड एंड सी इट स्टॉप्ड। तो मैं वही कह रही हूँ कि कहीं ना आपको रिपोर्ट तो करना ही करना है ऐसे आपका नंबर, बिकॉज जब तक आप ये नहीं कहोगे, आप ये मत सोचिए कि आप घर पे बैठोगे तो अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा, तो इट इज नॉट दैट, सो यू बेसिकली हैव टू टेक प्रॉपर कॉग्निजेंस, ये मैं कहूँ। इनफैक्ट ऑन दिस लाइन मैं एक छोटा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली गुड़गांव में शिफ्ट हुई थी, थोड़े दिन के लिए मैं वर्क कर रही थी, बॉम्बे से, पुणे से गुड़गांव शिफ्ट हुई थी, तो मैं भी, मेरे साथ भी ये खुद हुआ था, टेलीफोनिक हरासमेंट हुआ था, जहाँ पे मेरे पास एक कंपनी का स्टैंडर्ड नंबर था, मगर उसके ऊपर रात के 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बजे 4 बजे ऑब्सीन मैसेजेस और कॉल्स आते थे, एंड मैं बहुत परेशान हो गई थी। एंड जैसा आपने कहा मैम, बॉम्बे का साइबर सेल, वैसे ही दिल्ली का भी साइबर सेल पे मैंने ऑनलाइन ही रिपोर्ट लिखी थी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड द वे दे एक्चुअली रेसिप्रोकेटेड। हाँ एकदम, एसएचओ साहब ने ही मुझे डायरेक्टली कॉल करके 6 महीने के बाद भी फॉलो अप लिया कि मैम इज इट रिपीटिंग और इज इट हैज स्टॉप्ड फॉरएवर, and in fact only then the case got closed, and I was so surprised and also delighted that the police is changing and हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, yeah, of course मैं अभी इतने ट्रेनिंग्स ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि यस, वो चाहते हैं कि हम महिला और बच्चों की मदद करें, पर्सपेक्टिव में बदलाव आ रहा है, of course the changing is happening in a very slow pace, but yes, doesn't matter, drop in the ocean, but yes, we are definitely going to see a change. There is a sea change.
what we saw, what I saw, मेरे अभी almoस्ट 30 years in the field हो गए हैं, और ये 30 साल में मैं जो चेंज देखूं, of course पेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बट ठीक है, मतलब देर आए दुरुस्त आए, हम जैसे कहते हैं, और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस चेंज. बट मैंने जैसे कहा है कि ओनली लॉ कैन नॉट ब्रिंग दैट चेंज. आपका परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. एंड रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्ट है, मतलब एवरी सिटीजन शुड रिस्पेक्ट एवरी जेंडर एंड एवरी सेक्स. ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, ये जो बदलाव है, ये कानून अपने आप में काम नहीं करता है. लेट मी टेल, कानून अपने आप में काम नहीं करता है. मतलब आज आपने देखा प्रिया रमनी के केस में, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस को डिफेमेशन केस में कैसे फाइल किया गया. हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि किस तरह से हम महिलाओं को दबाया जाता है, बोलने की अनुमति नहीं मिलती है. एंड सच पावरफुल पीपल, अगर पावरफुल पीपल लॉ का इस तरह से गैर इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? Why today we are so frightened to go to the police station? Why today we are so frightened even to go to the court? ये क्यों है? जब तक ये systems हमारे victim friendly नहीं होंगे, जब तक ये victim friendly नहीं होंगे, हम justice के लिए बहुत, ये जो दौड़ है वो चालू रहेगी. बहुत ही बढ़िया मैम. मैम आपने मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ब खुद दे दिया. मैं जानना चाहती थी कि एज अ सोसाइटी हम विमेन और चाइल्ड एंड मेन सबके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि सबसे अहम बात है कि हमको डरना नहीं, ब्रेव होकर लड़ना है एंड रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है. नहीं, हम क्यों, मैं वही कहती हूँ कि क्यों हम कहते हैं कि लड़कियां 7 के बाद घर बाहर नहीं जाना चाहिए. मतलब आज हमारे जो एंटरटेनमेंट सोर्सेस है वो क्या सिर्फ लड़कों के लिए बने हैं? क्या वो लड़कियों के लिए नहीं है? तो क्यों ये जो फियर है ऑफ सेक्सुअल वायलेंस है, ये जो फियर है ऑफ ट्रोलिंग है, स्टॉकिंग है, ये सब फियर हमारी लड़कियों के लिए क्यों है? आज की तारीख में भी, मतलब 21st सेंचुरी में भी हम जेंडर स्पेसिफिक लॉज ला रहे हैं, मतलब जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू इक्वालिटी इज फॉर एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ whichever gender you belong to. Yes. And thank you so much ma'am. आज का discussion was such an amazing discussion है, लेकिन पता ही नहीं चला, समय बीत गया. 1 घंटा हो गया. अगर मुझे रिमाइंडर नहीं आता तो मुझे एहसास भी नहीं होता कि 1 घंटा हो गया. Okay, हो गया. हाँ, yeah, it is 58 now. So yeah, with that pleasure. Yeah, it was pleasure to be here today, and thank you Vicky. नहीं, मुझे बहुत ये है कि जरूरत है हमारी महिलाओं के साथ बात करना. मैंने वही कहा है कि जब तक हमारे सिस्टम्स विक्टिम फ्रेंडली होने चाहिए, तब जाकर हमारी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ऐसे मुझे लगता है. बिल्कुल. एंड मैं और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात की मैं मान रखती हूँ कि बात करनी पड़ेगी. डिफिकल्ट बात है, पीरियड्स की बात करने में शर्म आती है, अपने बारे में गलत हुई बात को डिस्कस करने में शर्म आती है, लेकिन उस शर्म को हमको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे, जब तक हम चुप रहेंगे हमारे साथ गलत होता ही रहेगा. एंड वी हैव टू ब्रेक साइलेंस. यस, थैंक यू मैम. थैंक यू. नमस्कार, मैं वंदना तेजी उज्ज्वला कदरेकर मैम के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने हमारे चैनल पे आए और हमारी बात सुनी. इसी तरह विकी टॉक्स के जरिए हम और भी बहुत सुप्रसिद्ध महिलाएं जिन्होंने बहुत काम करा है विमेन के फील्ड में, और आपकी जानकारी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि टू ट्रेन विमेन अक्रॉस इंडिया एंड महाराष्ट्र इन स्पेसिफिक. थैंक यू मैम. थैंक यू. Great evening to everybody.